بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نگر نگر سے باخبر میں میں ہوں عبداللہ چودھری۔ آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹی جوس فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملاوٹی خوراک کی روک تھام کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گڑ بازار اکاڑا میں کنفیکشنری سٹور کی انسپیکشن کی گئی۔ ٹیسٹ کے دوران جوس میں مصنوعی اجزاء کی ملاوٹ پائی گئی۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر غیر معیاری جوس موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ملاوٹی جوس کی سٹوریج پر فوڈ بزنس مالکان کو بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بچوں کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ گندگی کے ڈیروں کی خبر کیوں لگائی؟ چیف آفیسر ساہیوال طارق محمود گجر آپے سے باہر ہو گیا۔ فون کال کی ریکارڈنگ میں واضح سنا جا سکتا ہے کہ چیف آفیسر ساہیوال نجی چینل کی رپورٹر کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے، بھرپور لڑنا ہے، میں لاہور سے یہاں نوکری کرنے نہیں آیا۔ چیف آفیسر ساہیوال کی جانب سے کی جانے والی کال میں سنا جا سکتا ہے کہ چیف آفیسر ساہیوال کہہ رہا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ ڈپٹی کمشنر سرگودا سے بات چیت کر کے صفائی اور نکاسی آپ کے مسائل اجاگر کرنے والوں کو خبروں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چیف آفیسر ساہیوال کی کال سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو شہری سراپا احتجاج بن گئے اور کہا کہ یہ مسئلہ پوری تحصیل کا مسئلہ ہے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودا نوٹس لیں، ہم تعینات ایسے بد زبان اور بد فعل اور بد اخلاق آفیسر کی فوری طور پر معطل کیا جائے۔ اسکائی نیوز چنیوٹ سے ڈاکٹر طاہر رشید سیال کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او عبداللہ احمد کی ہدایت پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری۔ تفصیلات کے مطابق شہر کی سہولت کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ پولیس ڈرائیونگ اسکول میں ڈرائیونگ کی تربیتی کورس جاری۔ آئی ایس او سرٹیفائیڈ پولیس ڈرائیونگ اسکول میں عوام کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے۔ پولیس ڈرائیونگ اسکول میں 28 یوم کے کمرشل اور 14 یوم کے نان کمرشل کورسز کروائے جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے ملٹی میڈیا بریفنگ دی جاتی ہے۔ انچارج ڈرائیونگ اسکول علی عمران نے بتایا کہ کورس کے دوران بین الاقوامی طرز پر بنے ڈرائیونگ ٹریک پر ڈرائیورز کی عملی مشقیں کروائی جاتی ہیں اور معیاری اور انٹرنیشنل طرز عمل پر تربیت یافتہ ڈرائیورز کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں آسانی ہوتی ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے میڈیا کو بتایا کہ رواں سال پولیس ڈرائیونگ اسکول نے 8 بیجز میں سے 300 سے زائد شہریوں کو مکمل ڈرائیونگ لائسنس فراہم کی ہیں۔ تربیت یافتہ ڈرائیورز اپنے اور دوسروں کے سفر کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہری پور ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایت پر عوامی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے تحصیل غازی میں تندور مالکان کے خلاف کارروائی کی اور ضلع انتظامیہ کے مقرر کردہ نرخوں کی خلاف ورزی کرنے پر 3 تندوروں کو سیل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایت پر اور عوامی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے تحصیل غازی میں مختلف نان بائی اور تندور مالکانوں کے خلاف کارروائی، حکومتی ریٹ کی خلاف ورزی اور سرکاری نرخ نامے کی عدم دستیابی وزن میں کمی کی بنا پر 3 تندوروں کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا، جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے مطابق روٹی فروخت کی جائے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، بیورو چیف ہری پور۔ فیصلہ آباد ہنی ٹریپ میں نوجوان لڑکوں کو اغوا کر کے ان سے بھاری رقم وصول کرنے والا گروہ میں پولیس اہلکار کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ خبر کی تفصیلات کے مطابق فیصلہ آباد میں تھانہ سٹی کی حدود میں یہ منظم گروہ لوگوں کو مکان دکھانے اور لڑکی سے دوستی کے بہانے ورگلا کر گھر میں بلاتا تھا۔ وہاں پر آنے والے متاثرہ لوگوں کو زبردستی برہنہ کر کے ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا تھا۔ بعد میں پیسوں کے عوض متاثرہ لوگوں سے موبائل فونز چھین کر ان کی ویڈیوز بناتے تھے۔ ہنی ٹریپ گینگ کی نائکہ صبا ملک اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تھانہ سٹی میں 2 مقدمات درج کیے گئے۔ ہنی ٹریپ کی نائکہ صبا ملک نے گرفتاری کے بعد بتایا کہ پولیس اہلکار رانا انور اقبال تمام معاملات میں ملوث ہونا۔ خبر شامل کرتے ہیں ایم ایل سی سے نمائندہ خصوصی محمد مختار سلنگی کی رپورٹ کے مطابق ڈکیٹی کی کوشش ناکام، اپنے ہی ساتھی کے فائر سے ایک ڈکیٹ موقع پر جاں بحق، دوسرا فرار ہو گیا۔ تھانہ میرپور کے علاقے آڑی والا میں مسلح ڈکیٹوں نے ہلا بول دیا۔ آڑی والا میں عوام نے ڈکیٹی کی نیت سے آئے مسلح ڈاکوؤں کے گرد گھیرا ڈال کر
पकड़ने की कोशिश की, जिस पर डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जख्मी हो गए, जबकि दौरान फायरिंग मुबैना तौर पर अपने ही साथी के फायर लगने से एक खतरनाक इश्तिहारी डकैत मौका पर जहां बहक हो गया, जबकि दूसरा मौका से फरार हो गया। अहले इलाका ने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। इतला मिलते ही डीपीओ सर्कल मेलसी राना नदीम इकबाल, एसएचओ थाना मीरापुर अशरफ जहूर बारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और सारी सूरत हाल का जायजा लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हलाक होने वाले डकैत बदनाम जमाना मशहूर रिकॉर्ड याफ्ता ताहर उर्फ तारी है, जबकि दूसरे डकैत की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। गंदम की कम कीमत पर खरीदारी और किसानों की माशी एहतसाल के खिलाफ है। किसान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज में सदर बार एसोसिएशन फजल कालरो समेत किसानों की शिरकत। मुजाहरीन ने कहा कि हुकूमत पंजाब की नाकस हिकमत अमली की वजह से किसानों का माशी एहतसाल किया जा रहा है। एक तो गंदम की कीमत कम की गई, दूसरा हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी का अहदाफ भी कम कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा बारहाना ऐप गैर फाल होने की वजह से अक्सर काश्तकारों की दरख्वास्तें रह गईं। मुजाहरीन ने कहा कि इस वक्त किसान से 2800 से लेकर 3300 रुपए तक गंदम खरीदी जा रही है, जो सरासर जुल्म है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसान बददिल होकर दूसरी फसलों की तरफ तवज्जो कर लेंगे, जिससे कहत साली का खदशा पैदा हो जाएगा। किसान बिजली, डीजल, खाद समेत दीगर चीजें महंगे दामों खरीद कर फसल काश्त करते हैं, जिसका पूरा मुआवजा भी नहीं दिया जाता। मुजाहिरीन ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि गंदम की कीमत 5000 फी मन मुकर्रर की जाए ताकि किसानों का माशी इस्तेहसाल बंद हो सके। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। थाना जल्ला राइयां, तहसील दुनियापुर, जिला लोधरा चक 380 में फसलों से 30 साला नौजवान कासिम की लाश मिली। इम्कान है कि नौजवान ने गंदम को कीड़े से बचाने के लिए रखी जाने वाली जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की होगी। ताहम पुलिस इस मौके पर पहुंचकर गोलियों की डब्बी और दीगर अशिया को और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश कर रही है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मखदूम आली मुंतकिल कर दिया गया। कासिम के वर्सा भी मौका पर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि कासिम गैर शादीशुदा था। डीएसपी दुनियापुर सर्कल मियां अब्दुल रऊफ नफरी के हमरा मौका पर मौजूद। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान बहावलपुर के शहरियों के लिए अहसन इकदाम, डकैती, राजधानी और चोरी में मुलव्वस मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए की मालियत का माल मसरूका बरामद। पुलिस लाइंस पर पुरवकार तकरीब में बरामद शुदा माल मसरूका मोटरसाइकिल और नकदी रकम असल मालकान के हवाले। अवामुन्नास को लूटने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं। शहरियों को लूटने वालों की गिरफ्तारियों के लिए बहावलपुर पुलिस दिन रात कोशा है। पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स के अहकामात की रोशनी में डीएसपी सिटी सर्कल सरबराही में सिटी सर्कल पुलिस बहावलपुर ने बड़ी कार्रवाइयां करते हुए डकैती, राजधानी और चोरी में मुलव्वस मुलजमान से दौरान तफ्तीश मुकदमात को ट्रेस आउट करके लाखों रुपए मालियत का लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। बरामद शुदा माल मसरूका एसपी इन्वेस्टिगेशंस ने पुलिस ऑफिसर के हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में तकरीब के दौरान असल मालकान के हवाले किया। इस मौका पर डीएसपी सर्कल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर शहरियों ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नकदी रकम मिलने पर डीपीओ बहावलपुर और एसपी इन्वेस्टिगेशंस का शुक्रिया अदा किया। लकड़ी की रंगीन चारपाइयां और पीड़ा पंजाब की कदीम रवायात का हिस्सा है। खुशाब समेत दीगर इलाकों में तरक्की के इस जदीद दौर में आज भी रंग बिरंगी नक्शो नगार वाली चारपाइयां और पीड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा नूर इलाही आतिफ। लकड़ी की रंगीन चारपाई और पीड़ा पंजाब की कदीम रवायत का हिस्सा है। खुशाब समेत पंजाब के दीगर इलाकों में तरक्की के इस जदीद दौर में आज भी रंग बिरंगी नक्शो निगार वाली चारपाइयाँ और पीढ़े बहुत पसंद किए जाते हैं। ये रंगीन चारपाइयों और पीढ़ों की तैयारी इंतहाई मेहनत तलब काम है। दौर हाजिर में जदीद फर्नीचर की तैयारी के बावजूद खुशाब और इसके इलाका थल समेत दीगर मवादियात में आज भी लकड़ी की रंगीन चारपाइयों और फर्नीचर के इस्तेमाल का रिवाज आम है। शादी ब्याह के मौके पर वालिदैन अपनी बेटियों को ये फर्नीचर तोहफे में देते हैं। इन चारपाइयों की तैयारी पर खसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके बायस ये खूबसूरत और दिलकश लगती हैं। बताया जाता है कि चारपाई की तैयारी में कीकर और शीशम की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जिससे मुख्तलिफ टूल्स के साथ
खूबसूरत बनाया जाता है। चारपाई और पीढ़े के बनाने के 3 मराइल हैं, जिनमें लकड़ी की गोलाई, डिजाइन, रंगसाजी और नक्शो निगार शामिल हैं। रंगाई साजी और फूल बूटे बनाने के लिए सफेद, सुर्ख, पीला, सब्ज, काला, अनारी और पक्के सुनहरी रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रंगों की यकसानियत के लिए खजूर का तन्ना और चमक के लिए सरसों का तेल और मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे शहरों में चारपाई का इस्तेमाल खत्म हो रहा है, मगर ड्राइंग रूम्स, होटलों और देहाती इलाकों में आज भी लकड़ी का रंगीन फर्नीचर घरों और चौपालों की शान बढ़ाता है। जरूरत इस बात की है कि तेज रफ्तार मशीनी दौर में हाथ से काम करने वाले ऐसे कारीगरों की पजीराई और सरपरस्ती की जाए, ताकि कारीगरों का रुझान इस तरफ बढ़े और ये फन हमेशा जिंदा रह सके। पत्तोकी में दिन दहाड़े डाकुओं की इलामा इकबाल रोड पर वाकया मोबाइल शॉप में लूटमार, 2.5 लाख रुपए नकदी और कीमती मोबाइल लूट कर फरार। जबकि दूसरी वारदात में डाकुओं को राहगीरों पर फायरिंग से खतून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसील के मुताबिक पत्तोकी की मसरूफ तरीन शायरा इलामा इकबाल रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने दिन दहाड़े गन पॉइंट पर 10 अदद मोबाइल फोन्स और 2,50,000 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। जबकि एक और वारदात में थाना सदर पत्तोकी की हदूद में 5 से 6 डाकुओं ने बूपेवाल के करीब मोटरसाइकिल सवार राहगीरों को रोककर रुकने का इशारा किया, फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खतून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें पत्तोकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज भी डाकुओं की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जबकि मकामी पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। पत्तोकी के गवर्नमेंट हाई स्कूल हुसैन खां वाला में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए गए के साथ साथ मुस्तहिक स्टूडेंट्स में स्कूल यूनिफॉर्म्स भी तकसीम की गई। पत्तोकी के इलाका हुसैन खां वाला चक नंबर 8 में तकरीब तकसीम इनामात के इनकाद किया गया। इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में टीचर्स ने ट्रॉफी और शील्ड्स तकसीम की, जबकि इसके साथ साथ गरीब मुस्तहिक स्टूडेंट्स में स्कूल यूनिफॉर्म भी तकसीम किए गए। इस मौका पर सीनियर हेडमास्टर साजिद हुसैन हैदरी का कहना था कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान की हिदायत पर बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है, ताकि वो दिल को लगा कर तालीम हासिल कर सकें। उनका कहना था कि वज़ीर तालीम के मिशन पर अमल करते हुए स्कूल ना जाने वाले बच्चों के वालिदैन से भी मुलाकात करके उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए कायल कर रहे हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर माशरे का अहम फर्द बन सकें। अखाड़ा में बकरा चोर गैंग मुतहर्रक, कार सवार चोरों ने कबाड़ मार्केट से 2 बकरे और 2 छतरे चोरी करके फरार हो गए। मौका की सीसीटीवी फुटेज स्काई न्यूज ने हासिल कर ली। अखाड़ा देपालपुर चौक निजामी मार्केट में अब्बास अली नामी कबाड़िए ने कुर्बानी के जानवर पार रखे थे, जो कि हस्बे मामूल इसने अपनी दुकान के बाहर बांध रखे थे, जिन्हें फजर की नमाज के वक्त आल्टो कार में सवार 2 चोरों ने 2 बकरे और 2 छतरे 4 मवेशी कार में डालकर फरार हो गए। वारदात के करीब लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुतासरा शख्स अब्बास की दरख्वास्त पर थाना बी डिवीजन में बकरों की चोरी का मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बकरों के मालकान के मुताबिक इसके बकरे की कीमत 4.5 लाख रुपए है। पुलिस ने मुल्ज़िम की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी कहूटा रोड पर डाकुओं ने मुसाफिर बस लूट ली। मुसाफिर बस हवेली आज़ाद कश्मीर से लाहौर जा रही थी। तफसील शामिल करते हैं। डाकुओं ने कहूटा रोड पर नाका लगाकर मुसाफिरों से लूटमार की। डाकुओं की फायरिंग से एक मुसाफिर जाँ बहक, जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुसाफिर बस लूटने का वाकया गुज़श्ता रात पेश आया, जिसकी तहकीकात जारी हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्काई न्यूज़।